Student, in this video we learn the K-map. Actually, the K-map is nothing but the method by which we can simplify the Boolean equation. The Boolean equation may be SOP format or maybe POS format. That means the K-map is a Carnot map. The K-map is a graphical representation that provides the simplifying the Boolean equation. Already the Boolean equation can be the reduced with the help of the Boolean law. But this is the another method by which we can reduce the Boolean equation, and that method is a K-map, Carnot map. If in the Boolean equation have the two variable, then you have to draw the two variable K-map, and this is the two variable K-map. You have to remember this. If it is a two variable, then A here and B is here. For this cell, the number is 0. This cell is a 1. This cell is a second. This cell is a third. The value of this cell is, for A is 0. For B is 0. For this, A is 1. B is 0. And so on. 3 variable K-map is this. And 4 variable K-map is this. For the 4 variable K-map, 2 raised to the power 4. That means the 16 cells are the required. That's why it is a 0 to 16 cells. But the cells numbers are in this sequence. First it is 0, then 1, then 2, then 3. Then 4, 5, 6, 7. Now 8, 9, 10, 11, then 12, 13, 14, 15. You have to remember this sequence and you have to write this sequence in any problem of the 4 variable K-map. Again, out of the 4 variable, A and B variables are here, whose value is 0, 0 for this cell, 0, 1 for this cell, 1, 1 for this cell, and 1, 0 for this cell. Exactly for second, third and fourth variable CD, the value of the CD for this cell is 0, 0. For this 0, 1, then 1, 1, and then 1, 0. Means the value of the CD for this cell, this cell, this and this cell have the 1, 0. And value of the cell for this is 0, 0. A is 0 and B is 0. Here A is 0 and B is 1, and so on. You have to remember this pictorial representation for solving the 2 variable, 3 variable or 4 variable K-map. How to make the group of the cell for the simplification. The adjacent cell which have the ones can be the group together in 2 raised to the power n. जहां जहां सेल में 1 लिखा होता है, एक तो वहां 1 लिखा होगा, नहीं तो 0 लिखा होगा. अगर POS फॉर्मेट में है तो 1 लिखा होगा, अगर SOP फॉर्मेट में है तो 0 लिखा होगा. तो अगर 1 लिखा है POS में, तो मुझे ग्रुपिंग जो करना है वो 2 raised to the power n फॉर्मेट में करना है. मतलब 2 raised to the power n, मतलब 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, and so on. That means the 2 adjacent cell, 4 adjacent cell, 8 adjacent cell or 16 adjacent cell and so on. तो मुझे अगर 2 वैल्यू 1, 1 अगर यहां एंड यहां लिखा है, तो वी कैन ग्रुप दिस 2 cell. If we group the 2 cells, then it is called as a pair. The 2 adjacent cell can be the group called as a pair. अगर 1, 1, 1, 1 यहां लिखा है, तो ये जो 4 ग्रुप हो जाएगा, इसको हम कॉर्ड कहते हैं. अगर 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 यहां लिखा है और ये अगर पूरा ग्रुप बनाते हैं एडजेसेंट सेल का, तो दैट वाज द ऑक्टेट. मतलब अगर सेल में अगर 2 सेल का ग्रुप बनाते हो तो पेयर, 4 सेल का ग्रुप बनाते हो तो कॉर्ड, 8 सेल का ग्रुप बनाते हो तो ऑक्टेट. ग्रुप बनाते वक्त अगर 1 और 1 यहां है, तो हम इसका ग्रुप बना सकते हैं, दिस इज द पेयर. अगर यहां भी है, तो हम पूरा इसका एक ग्रुप बना सकते हैं, दैट वाज द
कॉर्ड। अगर यहां 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 है तो इसका भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं, अगेन दैट वाज द कॉर्ड। या हम इसका भी ग्रुप बना सकते हैं, दैट वाज द कॉर्ड। या हम पर्टिकुलर दिस सेल के लिए, ये कॉलम के लिए ये कॉलम भी एडजेसेंट कंसीडर कर सकते हैं, तो हम ये 4 और ये 4 मतलब 8 ग्रुप बना सकते हैं, और दैट वाज द ऑक्टेट। यहां भी वैसे ही, अगर एक 1 1 यहां लिखा है तो इसके साथ हम इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, दिस 2 सेल्स आर द एडजेसेंट्स। Otherwise, these are adjacent, these are adjacent, these are adjacent, these are adjacent, and so on. सबसे इंपॉर्टेंट के मैप में अगर ग्रुपिंग करेक्ट है तो वैल्यू करेक्ट आती है, अगर ग्रुपिंग गलत हो गई तो वैल्यू गलत आ जाएगी। जहां 4 का ग्रुप हो सकता है, अगर हमने 2 का ग्रुप बनाया तो 2 ग्रुप बनेंगे, और अगर ऐसा होता है तो मेरा इक्वेशन सिंप्लीफाइड नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले तो ग्रुपिंग प्रॉपरली करना है। अगर ग्रुपिंग प्रॉपरली होती है तो उसकी वैल्यू हमें प्रॉपरली आ सकती है। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हम ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले 1 1 यहां है तो हम इसका पेयर बना सकते हैं, इसका भी पेयर बना सकते हैं। इसका पेयर नहीं बनेगा, बट इसका पेयर बन सकता है, तो हम इसका पेयर बनाएंगे। इसका और इसका भी पेयर बन सकता है, इसका और इसका भी पेयर बन सकता है। अगर इसका पेयर बन सकता है तो हम इसका क्यों बनाएंगे? रिपीटेड चलता है। अगर ये नहीं रहता था तो हम इसके साथ इसका पेयर बनाते थे, बट अगर ये है तो हम इसके साथ इसका पेयर बनाएंगे। अब ये सिंगल बाकी है तो इसके साथ एडजेसेंट सेल इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, तो इसके साथ इसका ग्रुप बनाएंगे। तो ये मेरा एक पेयर हुआ। एग्जैक्टली 1 2 3 4 अगर है तो 100% ये मेरा कॉर्ड हुआ। इधर अभी 2 बाकी है, बट इन 2 सेल के लिए ये 2 सेल भी एडजेसेंट हैं, तो हम इसके साथ और इसके साथ एक कॉर्ड बना सकते हैं। दिस इज फॉर द 3 वेरिएबल्स। एग्जैक्टली फॉर द 4 वेरिएबल अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर ऐसा लिखा है तो 100% ये 4 और ये 4 मेरे एडजेसेंट्स होते हैं, और ये मेरा ऑक्टेट हुआ। तो 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी एडजेसेंट है, तो ये पूरा का पूरा ऑक्टेट हुआ। इसको ऑब्जर्व करो, ये मेरा 4 हो जाएगा, तो ये भी तो इसके साथ 4 हो सकता है। ऐसा ओवरलैपिंग चलता है। ग्रुप बड़ा बनाने के लिए ओवरलैपिंग चलता है। अब यहां 2 है तो इसका पेयर नहीं बनाना, क्योंकि इसके साथ ये 2 है, तो हम ये 2 और ये 2 एडजेसेंट्स कनेक्ट करके इसका पेयर बना सकते हैं, और दैट वाज द इसका ऑक्टेट बना सकते, इसका कॉर्ड बना सकते हैं। देन अगर ये सिंगल बाकी है तो ये किसी के साथ भी पेयर नहीं बन सकता, एडजेसेंट नहीं हो सकता, तो इसको सर्कल बना के सिंगल रखिए। यहां देखिए 1 2 यहां नहीं है, नहीं तो फिर ये मेरा कॉर्ड बन जाता था, बट ये तो है तो ये कॉर्ड बन जाएगा। अब यहां 1 यहां और यहां है, ये 2 पेयर बन सकते हैं, बट 1 2 3 4 ये भी एडजेसेंट है, तो हम इनका कॉर्ड बनाते हैं। एग्जैक्टली 1 2 3 तो ये दोनों का पेयर बनाते हैं, बट ये सिंगल बाकी है तो इसको छोड़ देते हैं। या फिर यहां और एक 1 रहता तो हम ऐसा भी कॉर्ड बना सकते हैं। दिस वॉज द पेयर। जिसका पेयर कनेक्ट है, जिसके एडजेसेंट्स ग्रुप प्रॉपरली है, वो 100% इसकी वैल्यू निकाल सकता है। चलो हम एक प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करते हैं। पेपर में एग्जाम्पल आता है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ द के मैप एफ ए बी सी समेशन ऑफ स्मॉल m, जहां जहां
समेशन ऑफ स्मॉल m लिखा रहता है 100%, दैट इक्वेशन इज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी वाला इक्वेशन है। और एसओपी वाले इक्वेशन में अगर वेरिएबल 3 है तो मुझे 8 सेल वाला के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, वो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। यहां 1 2 3 7 अगर दिया है तो 1 जहां है वहां मुझे 1 लिखना है। अगर एसओपी है तो 1 लिखना है। देन 1 1, देन 2 इज अगेन 1, देन 3 इज अगेन 1 एंड 7 इज अगेन 1। ये मेरी वैल्यू हो गई। अब इसको ग्रुपिंग बनाओ, इन दोनों का पेयर बन सकता है, फिर इन दोनों का भी पेयर बन सकता है, और इन दोनों का भी पेयर बन सकता है। अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पर्टिकुलर दिस पेयर के लिए, ये पेयर के लिए मुझे जो वैल्यू निकालना है, मैंने कहा था कि ये सेल के लिए अगर ए बी वेरिएबल है तो ए इज 0 एंड बी इज 0। अगर वो एसओपी फॉर्मेट में है तो 100% 0 इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट। तो ए बार, हियर इट इज अ बी बार, नाउ इट इज अ ए बार बी, देन ए बी, देन ए बी बार, exactly for C bar and C। मुझे ये पर्टिकुलर सेल की वैल्यू अगर निकालना है तो 1 और 3rd, ये जो सेल है ये एडजेसेंट सेल है, इनका मैंने पेयर बनाया है। तो इन दो सेल के लिए कौन से वेरिएबल कॉमन है वो मुझे लिखना है। अब जैसे 1 और 3 के लिए मेरा ए वेरिएबल बार यहां है, यहां भी ए बार है, बट यहां बी बार है और यहां बी है। इसका मतलब ये दोनों सेल के लिए बी की वैल्यू कॉमन नहीं है। इसके लिए बी बार है तो इसके लिए बी है, बट ए इज द कॉमन, ए बार इज अ कॉमन, दैट्स व्हाई राइट द ए बार here exactly for these two cell the C is a common, that's why write the C, means particular this pair की वैल्यू हो जाएगी ए बार C। एग्जैक्टली अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो ये दो सेल के लिए मेरा बी वेरिएबल कॉमन है तो यहां बी वेरिएबल लिखिए, और इन दोनों के लिए सी भी कॉमन है तो सी लिखिए। अब ये वाला जो है इन दोनों के लिए सी कॉमन नहीं है, ऊपर वाला सी बार है तो नीचे वाला सी है, बट ये दोनों के लिए ए बार बी कॉमन है तो दैट वाज द वैल्यू ए बार बी। तो मेरा लास्ट रिजल्ट हो जाएगा f इज नथिंग बट ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। इसके वाले पहले वीडियो में हमने जो इक्वेशन एसओपी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था वो ये वाला ही था, ये वाला ही था, हम आप चेक कर सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल है 4 वेरिएबल वाला ए बी सी डी, जिसमें सेल्स नंबर दिए हैं 0 1 2 3, 0 दिया है तो हम यहां 1 लिख लेते हैं, 0 की जगह 1, देन 1 की वैल्यू 1, देन 2 की वैल्यू 1, देन 3 की वैल्यू 1, देन 5 इज अ 1, 7 इज अ 1, 8 इज अ 1, 9 is a 1, 11 is a 1 and 14 is a 1। Now observe this। सबसे पहले मुझे तो सोचना है कि 8 का ग्रुप होता है क्या, ऑक्टेट क्रिएट होता है क्या? ऑक्टेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ अगर 4 रहते तो ये पूरा कंबाइन ऑक्टेट हो जाता था, बट कंटिन्यू 8 एडजेसेंट सेल नहीं है तो 4 को कंसिडर करो। 1 2 3 4 इज अ ग्रुप, देन दिस इज द 1 कॉर्ड। एग्जैक्टली 1 2 3 4 तो ये भी कॉर्ड हो जाएगा। अब इधर 1 2 3 का पेयर तो नहीं चलता, ग्रुपिंग नहीं चलता, 2 का चलता है, बट इसके साथ ये भी तो एडजेसेंट है तो हम इसका ग्रुप बनाएंगे इनके साथ। अब ये और ये, इधर भी ये और ये, तो इसका भी ग्रुप बनता है और इसका भी ग्रुप बनता है। अब ऑब्जर्व करो, ये जो है इसके लिए कॉमन वैल्यूज कौन सी है, इसके लिए कॉमन वैल्यूज कौन सी है? अब देखिए ये पूरे सेल के लिए यहां
ये 2 0 है तो ये यहाँ 2 1 है, यहाँ 0 1 1 0 है, इसका मतलब C ये है और D ये है, तो C और D कॉमन है नहीं। बट ये सब सेल के लिए अगर A और B कॉमन है तो मैंने कहा था SOP फॉर्मेट में ये A बार होता है, ये B बार होता है, ये A बार होगा, B ये A B देन A और ये B बार हो जाएगा, एज इट इज C बार D बार देन C बार D देन CD देन C एंड D बार। तो इन सब के लिए अगर ये वैल्यू कॉमन है तो A बार B बार इज अ वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। देन फॉर दिस ग्रुप 1 2 3 4 अगर ग्रुप है तो इसके लिए ऑब्जर्व कीजिए 0 कॉमन है, क्योंकि इधर 0 और इधर 1 है, तो ये अगर दोनों 0 ऐसा ऑब्जर्व करो, 0 0 कॉमन है मतलब A बार इज अ कॉमन। एग्जैक्टली इधर से ऑब्जर्व करो तो मेरा ये 1 कॉमन हो जाएगा, दैट वाज द D। तो D मतलब दिस इज अ A बार एंड देन D। देन फॉर दिस इसमें 9 11 और 1 3 इसका ग्रुपिंग हमने बनाया था, ये और ये। तो ऑब्जर्व करो यहां से ऊपर चलो, B बार इज अ कॉमन राइट हियर, B बार। तो इधर से इधर ऑब्जर्व करो तो D इज अ कॉमन। एग्जैक्टली इसके लिए जो वैल्यू हम निकालेंगे तो अगेन ये दोनों के लिए B बार इज अ कॉमन एंड इन दोनों के लिए C बार इज अ कॉमन। तो 1 2 3 4 ग्रुप था। अब ये सिंगल बाकी है तो ये सर्कल कर दो, और अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट वाज इसके लिए ए बी, इसके लिए सी डी, तो ये हुआ ए बी सी डी बार। तो लास्ट इसका आंसर हुआ F इज इक्वल टू, तो मुझे ये पूरे वेरिएबल्स लिखने हैं जो हमने प्रोडक्ट टर्म निकाली है, ए बार बी प्लस ए बार डी प्लस बी बार डी प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी सी डी बार। This is the last result of this SOP format equation। ये मुझे ख्याल में रखना है कि जहां जहां समेशन ऑफ स्मॉल m है वो मेरा SOP वाला के मैप रहेगा। आगे जो के मैप वाला हम प्रॉब्लम देखेंगे वो POS है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये समझ में आया है तो पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।